Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So in our series of Schemes Chronicle, where we try to make you aware about the recent schemes and the schemes which are important for your exams. We target those schemes and we try to deliver schemes in a very holistic manner. Plus we also provide the question there. So in the series, today we are going to study about the Malviya mission on teachers training program. So you must be aware कि इससे पहले भी there was a mission called which is the complete name Pandit Madan Mohan Malviya mission on teachers and training program. So it is a big name. So it was a basic kind of an umbrella scheme. You can say it is an umbrella scheme under which recently for higher education only a new target based mission has been launched by Dharmendra Pradhan. ठीक है, he has launched the mission. So we are going to study about the Malviya mission. Not only we are going to study about the Malviya mission कि exactly ये क्या है, इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके अंदर हायर एजुकेशन को लेकर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं. प्लस वन मोर थिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल विच आई थिंक विच इज़ इन द प्रोसेस एंड maybe that is very important because about the foundation National Research Foundation, it was mentioned in new education policy. So since the policy came in 2020, its objectives, its components are being implemented in a phase wise manner. So अभी की टाइम ऐसा कि इस साल फाउंडेशन बिल को लेके आया, रिसर्च फाउंडेशन बिल को, जिसने रिप्लेस किया हमारा SER बोर्ड को, साइंस एजुकेशन रिसर्च बोर्ड को. सो उसको रिप्लेस किया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. वो मैं आज अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बट यू हैव टू स्टडी इट बिकॉज वो NEP के लिए ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या ही पार्ट था. सो डेट वाई द रिसर्च फाउंडेशन बिल बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. So it is a program by University Grants Mission UGC. So it is a UGC program in which higher educational institutes HEIs will have around 111 Malviya mission centers where capacity building will be provided for the teachers. ठीक है, टीचर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा. बाय कैपेसिटी आई मीन टू से इनकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा, उनकी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जाएगा. हाउ? बाय गिविंग देम लीडरशिप ट्रेनिंग, बाय गिविंग देम प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बाय गिविंग देम कोर्सेज, बाय गिविंग देम एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, हाउ टू यूज देम, बाय एनेबलिंग देम सो दैट दे कैन सर्व द स्टूडेंट्स इन अ बेटर मैनर. ठीक है, सो टीचर्स ट्रेनिंग इज द फोकस हियर. सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स टू बी रिवैम्प्ड एंड नोन एज मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स. ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स थे जो डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर थे. इनको रीनेम कर दिया गया मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर के नाम से. ठीक है, सो कितने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है? अराउंड 15 लाख टीचर्स की करनी है, ये टारगेट है. ठीक है, 15 लाख एंड 111 मिशन मालवीय सेंटर्स. आपको ये फिगर याद रखनी है. ठीक है, इसके अंदर नाउ यस अबाउट मिशन मालवीय. सो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इससे पहले ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन. इट्स अ मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग. Here the purpose is to make teachers more educative, make them more capable, but it is for all. It is for, I think, for elementary as well as secondary, for higher, for technical and vocational. ठीक है ना, so it is targeting all. But mission Malviya is kind of, you can say it is a component, है ना, under the mission for training the in target manner, training that in a target manner the higher the professors in the higher educational institutions. What is the target? 50 lakh teachers to be targeted in 111 mission Malviya centers. ठीक है, it focuses on integrated teacher education program cater to the professional development needs for both pre-service and in-service teachers and faculty.
मतलब जो अभी टीचर लगे भी नहीं है किसी कॉलेज बट दे आर डूइंग बीएड एंड समथिंग, उनकी भी ट्रेनिंग हो, प्लस जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर है उनको भी इन सर्विस के अंदर ट्रेन किया जाए, सो दैट दे विल बी कंटिन्यूसली डेवलप, है ना. टीचिंग और लर्निंग शुड नॉट स्टॉप बेसिकली. सो दिस इज अबाउट दी पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग. ठीक है. नाउ specific to the mission Malviya, so it is basically tailored training program. Already ready-made training program होगा टीचर्स के लिए. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. व्हाट इज द टारगेट? ऑलरेडी टोल्ड 15 लाख टीचर्स होंगे 111 मालवीय मिशन सेंटर्स के अंदर. क्या क्या किया जाएगा? इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, बिल्ड लीडरशिप स्किल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. लीडरशिप स्किल्स इन टीचर एंड हेल्प रियलाइज द गोल्स ऑफ एनईपी. सो इसके बाद हम गोल ऑफ एनईपी यानी सेलेंट फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी देखेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देन इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज बीन इंक्लूडेड इन मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम ऐसे समझ लो कि टीचर्स को बताया जाएगा कि हाउ आर एंशिएंट टीचर्स यूज्ड वेरियस टेक्निक्स टू इन टीचिंग, है ना. लाइक चाणक्य नीति सिखाना, महाभारत में क्या क्या आउटकम्स थे, टीचिंग थी, वो सब टीचर्स को बताना ताकि वो टीचर्स वो चीज़ें आगे बच्चों में इंकलकेट कर पाएँ, अच्छे से अपने आप को एज ए लीडरशिप दिखाएं. इफ अ टीचर इज अ गुड लीडर, ही विल नॉट ओनली हेल्प द स्टूडेंट इन इट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट बट इज पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल. ठीक है. सो नॉट ओनली द ह्यूमन इंटेलिजेंस बट आर इमोशनल इंटेलिजेंस शुड ऑल्सो बी enhanced. ठीक है. Again, the human resource development centers to be revamped and known as मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स. ठीक है. तो कुछ फैक्ट्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है बट आपको इतना पता होना चाहिए. बट इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सो हेयर इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. नाउ आई हैव ऑलरेडी दोज फीचर्स विच आर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन. ठीक है. सो पहला है इंक्रीजिंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50%. ये आपको फिगर याद रखना है. इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? इज नंबर ऑफ पीपल गेटिंग एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर्सेस दोज हु शुड हैव बीन एनरोल्ड. ठीक है ना. सो जितने होने चाहिए तो उसमें से कितने एनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन में? इट शुड बी एटलीस्ट 50%. ठीक है. हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस. ठीक है. ये होना चाहिए. मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन होने चाहिए. मतलब इफ यू हैव डन 1 year your program in some institute, then if you want to exit it, you get the credits of that 1 year and just switch to your next education or your next study. ठीक है. यू कैन नेक्स्ट कोर्स बेसिकली कोई और कोर्स करना है आप स्विच कर सकते हो. मल्टीपल एंट्री एग्जिट होनी चाहिए. देन एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए जो एनटीए कंडक्ट करेगी. ठीक है. इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होना चाहिए. जैसे मैंने बताया कि आपने अगर एक सेमेस्टर पढ़ा है उससे क्रेडिट्स आपको मिलने चाहिए ताकि आप कहीं और अगर स्विच कर रहे हो तो वो क्रेडिट्स आपके ऑलरेडी काउंट हों, ताकि आपको दोबारा से वो चीज़ें रेप्लिकेट या डुप्लीकेटली पढ़नी ना पड़े. ठीक है. सेटिंग अप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़. मतलब इसका कहने का मतलब है किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर ह्यूमैनिटीज़ भी हो, साइंस भी हो एंड इंजीनियरिंग भी हो, सारी फील्ड इकट्ठे हों ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए. लाइक इफ अ साइंस स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी फ्रॉम फाइनेंस, तो ही मे गेट इनटू द कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड स्टडी फॉर अ ईयर और अ सेमेस्टर देयर एंड देन कम बैक टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. सो इट विल ओनली पॉसिबल व्हेन अ यूनिवर्सिटी विल हैव मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स. So an university should have multidisciplinary education and research. So setting up of MERUs basically. Then setting up of National Research Foundation. So this has already been done. इसका बिल आ गया था. So इसके अंदर क्या बताया गया था कि now what it will do? It will provide long term, short term, medium term plans for research in India. It will provide grants for research and incentivize the research in India. ताकि इंडिया में प्राइवेट R&D इंक्रीज हो. वी ऑल नो कि प्राइवेट R&D इतनी नहीं है, तो वी वांट टू इंक्रीज इट. जो कंपनीज शुड इन्वेस्ट R&D. इट विल ओनली पॉसिबल व्हेन द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. देन एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू इंक्रीज GER. ठीक है. इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है ना.
देन स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, हेल्थ यूनिवर्सिटीज, लीगल, ठीक है ना. मतलब बेसिक व्हाट इट इज सेइंग कि ऑल दिस institution should have multidisciplinary objective. लाइक अगर कोई लीगल का है तो वो खाली लीगल ना पढ़े, उन्हें कोई प्रोफेशनली भी डेवलप हो. दे शुड ऑल्सो, देखो कोई भी कोई कोर्स कर रहा है, ही शुड बी स्किल्ड इनफ ताकि उनको जॉब मिल सके. सो इसके लिए खाली आपका थ्योरी का पार्ट काम नहीं आएगा, यू हैव टू बी प्रोफेशनली अडेप्टेबल एज वेल. मतलब लेट्स से कोई आर्ट का स्टूडेंट है, ही इज स्टडिंग सम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, but at the same time he must know how to use computer properly. He must be able to use Excel, Word, etc. कंप्यूटर पे हैंडी होना चाहिए ताकि if he wants to get in the job of content checking, content preparation, etc. तो he must be able to use the computer. It's very simple thing. So उनकी professional development भी होनी चाहिए. It is only possible when a university or an institute will have multidisciplinary objective or approach. ठीक है. टीचर्स एजुकेशन होगी, 4 year इंटीग्रेटेड स्टेज 4 year इंटीग्रेटेड स्टेज होगी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, इसको बीएड होगी बेसिकली. टीचर्स एजुकेशन 4 साल का होगा, कोर्स होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा. ठीक है. देन सेंटर एंड स्टेट का मिला के 6% ऑफ जीडीपी का एट द अर्लीस्ट टारगेट लेके जाने हैं. सो आई एम टेलिंग यू वी आर वेरी क्लोज टू 6% ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, बट स्टिल थोड़ा सा रहता है अभी भी. तो आई थिंक बाय द टाइम कुछ आने वाले सालों में वी विल सी कि वी विल क्रॉस 6% ऑफ जीडीपी. ठीक है ना. नाउ द क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने 2 फैक्ट्स लाए हैं जो हमारे पीपीटी के अंदर नहीं थे, बट आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. सो हमें करेक्ट वन बताने हैं. पहला है हमारा बजट एस्टिमेट ऑफ 23-24 फॉर हायर एजुकेशन इज ₹45,095 CR. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट अमाउंट. या को याद रखना है. 2018-19 में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेके आया था. ऑन इनकम वाज इंट्रोड्यूस्ड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट. 15 लाख टीचर्स टू बी ट्रेन अंडर मिशन मालवीय. दिस इज करेक्ट. ठीक है. सो ऑल ABC आर करेक्ट. सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये लगते हैं हमारी इनकम टैक्स के ऊपर. टैक्स ऑन टैक्स होता है, सेस का होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है. तो 4% लगता है. इसका पैसा गवर्नमेंट लेती है और एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है. ठीक है ना. और इस बार का बजट एस्टिमेट कितना है? ऑफ द हायर एजुकेशन गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड अराउंड ₹44,095 crore. ठीक है. एंड 15 लाख टीचर्स टू बी ट्रेन अंडर द मिशन मालवीय. सो थैंक यू गाइज. थोड़ी छोटी स्कीम थी, बट मे बी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मिशन मालवीय रिलेटेड टू विच थिंग. सो you have to answer it. It is related to teachers training at higher educational institutions. ठीक है. Plus they can ask questions on these points as well कि what is the budget estimate for higher education. Now they can also go towards the main scheme which was this scheme, Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Training. They can go on to this scheme as well. इससे component पूछ सकते हैं. So जब भी आप पढ़ रहे हो तो माइंड खोल के पढ़िएगा कि ये नहीं कि जो पूछा है वही, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें लिंक हो रही हैं, आपको इस ऐसे पढ़ना होता है. मिशन मालवीय आया रिलेटेड टू हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन का है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानो. ठीक है. उसके टारगेट्स देखो. हायर एजुकेशन का बजट कितना है इस साल का एस्टिमेट वो देखो. जिस स्कीम का ये सब मिशन है, जो ये मेन मिशन है, इससे कंपोनेंट्स के बारे में जानो. देन योर प्रिपरेशन इज होलिस्टिक. तब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे या फिर आपको नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा. ऐसे पढ़ोगे ताकि आपको मज़ा भी आएगा, लर्निंग भी सही होगी. सो ठीक है. तो मैंने वही ट्राई किया कि सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आऊँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. छोटी स्कीम थी बट क्वाइट इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर हायर, क्योंकि हायर सीधा एजुकेशन को टारगेट कर रही है. तो इसको एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना. ठीक है. सो थैंक यू गाइस.